ایس ایچ او میرپور سردار واجد علی نے جناح نیوز کی ٹیم کے ساتھ اپنی خصوصی نشست کے دوران بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں اپنے پیشہ ورانہ کامیابیوں کی طرح مستقبل میں بھی اپنی پوری ایفرٹس سے معاشرے میں امن و امان قائم رکھا جائے گا، کیونکہ بطور ایس ایچ او پہلے بھی کئی تھانوں میں تعیناتی ہو چکی ہے، لیکن بنسبت دوسرے تھانوں کے تھانہ میرپور بھی ایک مشکل تھانہ ہے اور اس کے ساتھ ملحقہ گنجان آبادیوں کے حوالے سے کئی چیلنجز بھی درپیش ہیں۔ ان علاقوں میں فتنہ و فساد اور پراپرٹی کے تنازعات عام ہیں اور میرپور کی ملحقہ آبادیوں علاقوں میں مختلف جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی بھی بذات خود ایک چیلنج ہے، لیکن بہترین منصوبہ بندی اور افسران بالا کی گائیڈ لائن سے ان کمزوریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا، عوامی تعاون سے آگے بڑھا جا سکتا ہے، بلکہ جرگہ سسٹم سے بعض بہت سنگین قسم کے معاملات حل کیے جا سکتے ہیں۔ دریں اثنا، چونکہ سردار واجد علی بہت ہی ٹیلنٹڈ شخصیت کے حامل انسان اور سائنٹیفک بنیاد پر تفتیش کے نظام کو آگے بڑھانے کے حق میں ہیں اور جوان عمری میں ہی اس عہدے پر پہنچ کر کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے کے ناصور، منشیات فروش، چور ڈکیت اور دیگر مافیاز کی سرکوبی کے لیے عوام اور میڈیا کی رہنمائی بھی وقت کی اشد ضرورت ہے اور ان کے تعاون کا بھی میں ذاتی طور پر متمنی ہوں۔ ہم اس وقت ایبٹ آباد کے ایک معروف تھانہ میرپور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں تھانہ میرپور کے ایس ایچ او جناب سردار واجد صاحب۔ تو آپ سے ان کا تعارف بھی کرواتے ہیں، آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس تھانے کو انہوں نے کیسے پایا اور اس تھانے کو وہ کیسے مینج کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی واجد صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ۔ تو آپ ماشاء اللہ ایز اے اسٹیشن ہیڈ آفیسر اس تھانے میں تعینات ہوئے ہیں، تو آپ نے یہاں پر کیا فیلنگس کی ہیں؟ آپ نے اس کو کس طرح مینج کیا؟ فرسٹ آف آل پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ تھانہ باقی تمام تھانوں سے بہت ڈفرینٹ ہے بیکاز کہ یہ بہت زیادہ بیزی ہے۔ اس میں بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، مطلب پبلک ڈیلنگ اور ان ایکسپیکٹڈ کیس یہاں پہ آپ کو مینیج کرنے پڑتے ہیں۔ مطلب باقی تھانوں کی نسبت یہ بہت بزی تھانہ اور بہت زیادہ وہ بڑے اس میں انسان کو پرسنل سکلز اور بہت ویژولائزنگ نظر آتی چاہتی ہے یہاں پہ۔ تو ماشاء اللہ آپ کافی ینگ بھی ہیں اور آپ کے لیے چیلنجز بھی یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہیں۔ تو ایک تو آپ نے کارنامے بھی کافی کیے ہیں اور میں آپ کے منہ پہ کہنا چاہتا ہوں، آپ جیسے ہی اس تھانے میں پروموٹ ہوئے تو آتے ہی آپ نے کافی اچھے کام کیے ہیں۔ تو یہ اچھے کام آگے کیا مستقبل میں آپ سمجھتے ہیں کہ جاری رہیں گے؟ انشاءاللہ کیوں نہیں جی، ہمارا تو پہلا فرض ہی یہی ہے کہ جہاں بھی جائیں اور جتنا اچھا ورک ہو سکے کریں، اور جب یہ کام آپ کرتے ہیں تو کام میں کنٹینیو جب تک تو کام میں مزہ نہیں آتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی اچھا کام کرو اس میں کام کو چھوڑے تاکہ جو مافیاز ہیں یا دیگر لوگ ہوتے ہیں وہ ونس اگین اس کام میں مشغول ہو جائیں، یہ چیز نہیں۔ میرا یہی بڑا کلیئر کٹ اس میں ہے، مطلب کہ ہم جب بھی ایسے انشاءاللہ یہ جب تک یہاں یا جدھر بھی رہیں گے یہ کام ہمارے جاری رہیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے اس ملک اپنے ماحول کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے وہ۔ ماشاء اللہ جی۔ دوسرا آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ آپ جیسے اس تھانے میں آئے تو یہ چند تھانے ایبٹ آباد میں اس قسم کے ہیں کہ یہ بڑے مصروف تھانے کہلائے جاتے ہیں، جیسے نواز شہر تھانہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ایبٹ آباد تھانہ کہہ سکتے ہیں اور یہ میرپور تھانہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس تھانے میں آپ نے کیا مسائل زیادہ دیکھے ہیں؟ یہاں جو یہ تھانہ تو باقی تھانوں سے بہت زیادہ بزی تھانہ بھی ہے اور بہت بڑا تھانہ بھی ہے۔ یہاں پہ کچھ جو بین مسائل ہیں وہ جو مجھے فیل ہوا یہاں پہ آ کر کہ ایک تو یہاں پہ پبلک کے اندر پراپرٹی کے ڈسپیوٹس بہت زیادہ ہیں، مطلب یہ لین دین کیا ہو گیا، زمینوں کے ایشو ہوتے ہیں، یہ پولیس کے پاس نارملی آتے ہیں، حالانکہ یہ پولیس کے ہمارا یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ یا دیگر معاملات اس میں ہونے چاہیے۔ ایک یہ ایشو کافی زیادہ ہیں۔ سیکنڈ ون از دیٹ یہاں تھوڑا سینسٹیو سے ایریا بھی بہت زیادہ ہیں، اور یہاں پہ نارکوٹکس کا بہت بڑا ایشو تھا جس پہ ہم الحمدللہ شروع دن سے ہم بہت اچھا ورک کر رہے ہیں، اور میرا یہ مشن ہے کہ یہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو میرا مشن ہے مین وہ کہ پبلک کی سیٹسفیکشن، کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی بھی بندہ ہے یا جو بھی مسئلہ لے کے آئے تو میں اس پہ اپنی 100% کوشش کر حل کرنے کی کوشش کروں۔ میرے وہ آیا میری ڈومین میں ہے تو میں اس کو پراپر طریقے سے مینیج کروں ایز پر لا۔ اگر میری ڈومین میں نہیں بھی ہے تو میں اس کو پراپر گائیڈ لائن دوں کہ اس کا یہ مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے، کیونکہ پولیس کے اوپر لوگوں کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں۔ چند ایک یہاں پہ مطلب بہت مسائل تو ہماری سوسائٹی میں بے انتہا ہیں، لیکن یہ مین کچھ ایشو تھے لوگوں کے یہاں پہ جو میرے پاس آتے ہیں وہ پراپرٹی ڈسپیوٹ زیادہ ہوتے ہیں، لین دین کے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، اور نارکوٹکس کا بہت بڑا ایشو تھا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور جو اس سے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو مین ایشو جو میں نے یہاں پہ آگے فیل کیا کہ یہاں پہ
हमारे जो एरियाज़ पे कोई मैनेजमेंट ऐसा सच नहीं थी कि मतलब कह सकते हैं कि हमारी जो पब्लिक अवेयरनेस हम कर रहे हैं, कैंपेन्स कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आउटर्स हैं, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे हालात इस तरह के हैं कि एक मोहल्ला है, उस घर के साथ अगले घर वाले को पता है मेरा घर वाला कौन है। ये चीज़ें काफ़ी इश्यूज़ हैं जिससे काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं चोरी, दीगर मामलात ये बढ़ सकते हैं ना। तो हम अभी प्रॉपर तरीके से सर्च स्ट्राइक ऑपरेशन भी कंडक्ट कर रहे हैं, पब्लिक में ये चीज़ें भी मैनेज कर रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ जो इस सिलसिले में मुझे महारत मिली है वो यहाँ के जो लोकल नोटेबल हैं, जो पीएलसी मेंबरान हैं, हम उनसे मीटिंग कर रहे हैं, मुअज़्ज़िन हलाका से मिल रहे हैं, ताकि वो हमारी इस पूरी देखिए पुलिस अकेले कुछ नहीं कर सकती। हमने कोई भी अगर मसाइल हैं, कोई भी चैलेंजेस हैं, तो जब तक पब्लिक हमारे साथ हम आंग नहीं होगी, पब्लिक को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, दीगर मामलात में नहीं होंगे, उनसे मिल बैठेंगे नहीं, तो ये चीज़ें हल नहीं हो सकती। तो ये मसाइल तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ये मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने डिस्क्राइब की हैं। प्लीज़। तो ये भी पूछना मैं चाहूँगा कि ये आप जब इस थाने में आए तो आपको वसाइल की कमी का कोई अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर आपकी नफरी, आपके पास वेपन्स, आपके पास जो दीगर जो लवाजमात होते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ किसी चीज़ों की अभी ज़रूरत बनती है? देखिए वो तो एक बहुत बड़ा इशू है, ओवरऑल हमारे हर तरफ होता है। वसाइल तो ये तो हम खुद इतना मसला नहीं, लेकिन हमारी मैनेजमेंट होती है। असल चीज़ होती है वो मैनेजमेंट होती है कि आपके पास जो वसाइल दस्तियाब हैं, आपने किस तरह उनको यूटिलाइज़ करना है ना। तो मेन जो चीज़ होती है वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है और आपने मैनेजमेंट करनी है। मेरा जो पॉइंट ऑफ वर्किंग का व्यू है ये, या मेरा शेड्यूल इस तरह कि मेरे पास जो भी चीज़ होती है मैं उन्हीं पे करके और मैनेज करता हूँ मैटर को, कि हमने अपनी ड्यूटीज़ या अपने जो सिस्टम है उसको कैसे इसमें इन्वॉल्व करके एक पॉजिटिव आगे चीज़ निखार लानी है। चीज़ें वही होती हैं, मामलात वही होते हैं, लेकिन आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी हो, आपका वर्किंग वे ऐसा हो कि आप किसी ऐसी चीज़ को आगे मतलब उन्हीं से लेके इनको निखारें, ताकि कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र आए प्लीज़। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आप ये थाना मीरपुर में जब तैनात होने से पहले आप कहाँ-कहाँ पे तैनात रहे हैं एज़ एसएचओ या एज़ इंचार्ज? तो ये भी थोड़ा-सा तफ़सील बताना पसंद करेंगे आप? व्हाई नॉट। मैं तो आई थिंक 2012 में हम एनरोल हुए पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, और 14 के बाद हमारी ट्रेनिंग के बाद मैं आज तक मतलब 5 ये मेरा 7वां थाना है बीइंग एज इंचार्ज। मैं एसएचओ सिटी रहा हूँ, हवेलियाँ नाड़ा थाना के अंदर रहा हूँ, लोरा में रहा हूँ, बकोट पे रहा हूँ, नोएली में रहा हूँ, और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन में कुछ टाइम रहा हूँ। मतलब उसके बाद ये लगातार 5 ईयर्स बैक अप जाएँ तो मतलब मुख्तलिफ थानों में एज इंचार्ज ही रह चुका हूँ। माशाल्लाह जी, आपने तो काफ़ी वक्त में काफ़ी अचीवमेंट्स की हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आगे मुस्तकबिल में भी खुदा कामयाब करे और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें और लोगों के मज़लूम लोगों के दुख की आवाज़ आप बनते रहें। दूसरी मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप पुलिस में कैसे आए? हाँ, पुलिस एक शौक़ था। बिफ़ोर दिस मैं दीगर मतलब एनजीओ सेक्टर में भी रह चुका हूँ, टीचिंग में भी रह चुका हूँ। तो ये शौक़ मतलब मेरी फ़ैमिली में कोई पुलिस वाला है, मेरी पूरी बहुत बड़ी फ़ैमिली है हमारी गाँव की, लेकिन उसमें कोई पुलिस नहीं थी, मतलब कोई पुलिसमैन नहीं था ना। तो इस डिपार्टमेंट से मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि बेसिकली हमारी फ़ैमिली इस डिपार्टमेंट को लाइक नहीं करती थी। तो मुझे एक शौक़ पैदा हुआ, मैंने कहा मैं मतलब वो सिलेक्शन हो गई तो जॉइन नहीं की, ताकि थोड़ा-सा एक पॉज़िटिव चेहरा भी सामने आना चाहिए ना, लोगों के माइंडसेट चेंज हो, और अपनी फ़ैमिली के अंदर भी कोई ऐसा बंदा जो पुलिस के अंदर हो। दूसरा सरदार साहब, मैंने ये चीज़ भी फ़ील की है, आप एक जिस तरह पुलिस ऑफ़िसर बिहेव करते हैं आप उस तरह बिल्कुल नहीं चल रहे। आप माशाल्लाह एक साइंटिफिकली बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं और माशरे को भी साथ लेकर चल रहे हैं और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। अभी भी हम थाने में आए तो काफ़ी जिरगे के लोग आपके सामने बैठे हुए थे और आप जिरगे को निपटा रहे थे। तो ये क्या टर्मिनोलॉजी है आपकी? देखें, बहुत से ऐसे हमारी सोसाइटी के मसाइल होते हैं ना, कि जो गरीब लोग हैं, या आप कह सकते हैं कि लोगों को अगर आप कोर्ट की तरफ या दीगर मामलात में डल करते हैं तो बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें पार्टीज़ को बिठा के, जो मेरा मौक़िफ़ है, तो उनको थोड़ा सा कायल करें, मोटिवेट करें, और अच्छी तरह, और आपके अंदर अगर ये है पैशन है कि आप हक़ की बात कर सकते हैं और आप सच की और इंसाफ, तो अगर वो करें तो लोगों में वो एक्सपेक्टेशन बढ़ती हैं, और वो मसला जो मसला 10 साल में हल होना हो, वो मसला आप विदिन 10 मिनट्स भी हल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी मतलब मेरे पास बहुत लोग आते हैं, हमारा ये मसला है, मेरी कोशिश ये होती है पहले कि उनको यहाँ पे बिठाया जाए, सुनने के बाद आप मेरिट पे डिसाइड करें। और मैंने ये चीज़ बड़ा
फ़ील किया है कि जब आप मेरिट पे डिसाइड करते हैं तो लोग आपको उस अच्छा रिस्पॉन्स लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, हमारे मसलों को एक्सेप्ट करते हैं। तो वो मामलात काफ़ी सारे मेरे साथ चलते रहते हैं, जहाँ भी मैं जाता हूँ तो लोग मेरे मतलब इस मामला में कि सर ये मसला हमारा, इसको आप ख़त्म करें प्लीज़, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी मेरी बात सुनते हैं, ये बात नहीं है। तो बजाय कि मैं उसको लिंगर ऑन या उसको मैं उसको करूँ या उसमें उनको किसी और लेके जाऊँ, तो कोशिश होती है कि पब्लिक या उनको टाइम देते हैं कि भाई इधर बैठ के मसले, वो लोगों के मसले भी हल होते हैं। इसलिए हम साथ, इसके लिए मैं पीएलसी मेंबरान का भी साथ लेता हूँ, जो हमारे पब्लिक लिज़ान कमेटी, हम पुलिस लिज़ान कमेटी हमारी, मुअज़्ज़िन ला के उनको भी बुला लेते हैं और वो बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं मेरे साथ फिर। तो ये चीज़ें फिर इस तरह काफ़ी हद तक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, ये थाना मीरपुर जिस एरिया पे वाक़ है, ये एरिया ये आप कह सकते हैं कि शाहराह रेशम के बिल्कुल ऊपर वाक़ है, और ये थाना इतना मसरूफ़ थाना है कि इन पुलिस अफसरान को इस मेन शाहराह के हवाले से भी मसाइल का सामना करना पड़ता है, ख़ासकर टूरिस्ट के हवाले से। तो ये आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जब सयाह आते हैं, ये अगस्त और जून और जुलाई के महीने में एबटाबाद में, तो ये आप इनको किस तरह मैनेज करते हैं जी? देखिए, ये तो वाक़ई ये नो डाउट कि ये एक ऐसी इशारा है जो हमारी गिलगित से चाइना तक जाती है। लेकिन अभी कुछ मोटरवे के बनने से यहाँ पे ये हुआ कि वो ट्रैफ़िक का बर्डन आप कह सकते हैं, लोगों का कम हो, लोग डायरेक्टली ज़्यादा मूव कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आबादी बहुत बढ़ रही है, रोड की सिचुएशन वही है, हमारे ट्रैफ़िक के मसाइल होते हैं। तो उन चीज़ों को हमने उसके लिए हमारी मुख्तलिफ़ मैनेजमेंट जो हमारे हाई अप्स की तरफ से भी होती है ना, एसओपीज़ होती हैं कि हम पब्लिक या सियाहों की उनकी मावनत के लिए या अवेयरनेस के लिए पम्फलेट वगैरह लगा देना, और एंट्रेंस के ऊपर बाज़ का नाके लगा देते हैं, और जहाँ पे एग्ज़िट हो वहाँ पे कुछ उनकी रहनुमाई के लिए डेस्क बना देते हैं। ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये तो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन इन बिटवीन इनके अंदर आप कह सकते हैं कि इतना बाज़ का तो होता है कि एक्सीडेंट के मसले हो जाते हैं, वो सड़क टूट पड़ी, तो वहाँ पे फिर हमें बर वक्त पुलिस उसी ऑन द स्पॉट ही कार्रवाई करनी पड़ती है, उसी डिसीजन करना पड़ता है। यहाँ पे हमें कोई पुलिस एहलकार खड़ा करके या ट्रैफिक के थ्रू या थाने के थ्रू हम वहाँ पे, ताकि पब्लिक की फैसिलिटी कर सकें उसको। इधर पेश करो। सरदार साहब, आपसे एक बात ये भी पूछना मैं चाहूँगा, चूँकि हमारा भी ताल्लुक़ मीडिया से है, और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे जो दीगर मीडिया के लोग हैं, हमारे भाई हैं वो भी, तो उनका बर्ताव या उनका सलूक आपके साथ कैसा रहता है? हाँ, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तो काफ़ी सारे अच्छे मेरे दोस्त हैं इस प्रोफ़ेशन में, काफ़ी से अच्छे लिंक से, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन 1-2 चीज़ें हैं, मैं वो बड़ा क्लियर करूँगा कि वो इस तरह की एक तो हर एक चीज़ में प्रोफ़ेशनलिज़्म होना चाहिए ना। जो बदकिस्मती से हमारे किसी भी प्रोफ़ेशन में या किसी भी, वो बहुत कम है। तो वो चीज़ें नहीं हैं, और दूसरा ये है कि मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने मीडिया वाले भाइयों से, कि रिक्वेस्ट है मेरी उनसे ऑनरेबल, कि प्लीज़ कोई भी अगर आपके पास कोई हो तो उसको वेरीफ़ाई करें, क्या करें, हर एक चीज़ को वेरीफ़ाई करें विदाउट एनी वेरिफ़िकेशन। बाज़ का आप किसी चीज़ का एक रुख देख रहे होते हैं, दूसरा रुख आपने नहीं देखा होता ना। लेकिन कंसर्न अथॉरिटी से, कंसर्न पर्सन से जब आप वेरिफ़िकेशन तो आपको शायद रियलिटी मिल जाए, एक ये चीज़। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं बताऊँगा कि हक़ाइक़ के ऊपर बात हो जाए, ठीक है। किसी की पर्सनलाइज़ या उसकी पर्सनैलिटी या उसके ट्राइब्स पे मतलब वो होता है ना, हमारे यहाँ सिस्टम है, वो नहीं। आप उसकी आप वर्क से हमें हमें काम से मतलब होना चाहिए ना, ना कि हम किसी की ज़ातियात के ऊपर ऐसे मसाइल। और लास्ट वन मेरा यही होगा उनसे कंसर्न कि काइंडली जो रियलिटी के ऊपर हो, हक़ाइक़ के ऊपर लिखें, और पॉजिटिव माइंड के साथ लिखें करें। इस ये हमारी इस्लाह है। हर देखें, हर जगह ये चीज़ होती है, गलतियाँ भी होती हैं, इंसान से होती हैं, लेकिन हमें हमेशा मुस्बत सोच और तामीरी सोच से आगे निकलना चाहिए, ना कि हम मनफी सोच से या किसी की पर्सनैलिटी या किसी शख्सियत के ऊपर ऐसा काम करें जो उसके मतलब उसके अगर 1000 काम अच्छा होगा तो कोई एक बात जो गलत होगी तो वो पूरे काम पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए प्लीज़, ठीक है। नहीं, ये बात एसएचओ साहब ने बड़ी बरवक्त और बड़ी दुरुस्त भी की है, और मैं तायद भी करता हूँ इस बात की। इसी के साथ नाज़रीन, मैं थोड़ी सी अपनी बात भी करना चाहूँगा कि मैं ये चाहता हूँ जिस तरह ये सरदार वाजिद साहब एसएचओ मीरपुर हैं, इसी तरह अल्लाह करे हमारे हर थाने में इसी तरह यंग जनरेशन के एसएचओ आएँ, पढ़े लिखे हों, साइंटिफिकली बुनियाद पर आगे बढ़ें, और एक बात ये है कि मज़लूम अवाम की आवाज़ बने। और इसी के साथ सरदार अली, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कैमरामैन सरदार अली के साथ डॉक्टर मलिक अमजद महमूद, जना न्यूज़, एबटाबाद।